Good morning, students. Here I'm uploading you, I'm preparing the next video of a recording of transaction, chapter number 3 of your book, Accountancy. I have already given you two or I think three videos of this chapter. Now in this video, I want to solve a question of accounting equations so that you might feel yourself comfortable with these problems, and you might have some clear concept about what are the effects of these transactions and how can we see these effects and how can we show these effects in accounting. How one transaction is going to affect different different parts of different accounts, different ledgers. So let's see. So start with the question. First, let me introduce you with the question. I have a question in which we have to show the accounting equation. Equation means the situation where left hand side and right hand side both are equal. So 10 transactions are given. The transactions start with the capital, which was brought in cash 8 lakhs and in stock 50,000. Purchase of plant is made. A part of that payment was made in cash, and rest of the part is on credit. Opening of bank account is there, purchase of goods, purchase of furniture, lots of things we have, and at the time of solution we will discuss every single part. So let me introduce you the table which I have prepared for you guys in my computer. Here we can say in the leftmost side the transactions, whatever transactions we have, it will be shown in this in transactions column. Then the asset column is asset column including cash, inventory, plant and machinery, bank, furniture, debtors. Why? Because we know that assets include these all things. Then total. Then on right hand, extreme right, we have liability side, which include creditors and capital, and one more column for total. The green shaded area of the table tells us, show us the effect of the transaction, the continuing transaction, the effect of transaction will be shown in these green shaded regions, whereas white shaded regions will show us the total balance or the amount after the effect of that transaction. I think you guys are getting my every word. So let me explain. If you have any problem, don't you have any problem? For that purpose I also try to speak in Hindi also. तो जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट देखेंगे, और वाइट शेडेड रीजन में हम लोग ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है अगले ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के लिए जो हमारे पास अमाउंट रेडी है उस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे। और इस टेबल में हम लोगों को यही देखना है कि ये टोटल, बोथ टोटल्स ऑलवेज इन वाइट शेडेड रीजन, दोनों टोटल हमेशा इक्वल आने चाहिए। दैट इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट with the first transaction, that is introduced 8 lakh as cash and 50,000 by stock. Look, in green shaded zone there is 8 lakhs, कैश हमारा 8 लाख से बढ़ गया और हमारा स्टॉक 50,000 से बढ़ गया, जबकि हमारे कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर गया 0 से 8.5 लाख, और हमारा बैलेंस हम लोग टोटल देख सकते हैं कि दोनों एसेट भी हमारा पूरे 8.5 लाख का एसेट हमारे पास है, और कैपिटल क्योंकि गुड्स भी कैपिटल के फॉर्म में लाया गया, स्टॉक जो इन्वेंट्री है,
तो दोनों को हम लोग जोड़ के यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा लाइबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल है। लेट्स परचेज प्लांट फॉर 3 lakhs बाई पेइंग 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। 3 लाख का मशीनरी खरीदा। 3 लाख की मशीनरी खरीदते ही हमारे प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख रुपए का क्या हुआ, 3 लाख रुपए हमारा 3 लाख रुपए का एसेट हमारे एसेट साइड हमारा बढ़ गया 3 लाख रुपए से, क्योंकि हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। उसको 15,000 रुपये कैश दे दिया। हमारे पास कैश था 8 लाख रुपया, उसमें से 15,000 रुपये हमने उसको दे दिए, तो हमारे पास कैश कितना बचा, 7,85,000। इन्वेंट्री में कोई हमारा छेड़खानी नहीं है, तो इन्वेंट्री विल रिमेन सेम। अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड शोज कि 15,000 रुपये तो हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन बाकी तो उधार जो लगाया वो 2,85,000 वो हमारे क्रेडिटर होंगे। ऐसे लोग जिनको पैसा हमें फ्यूचर में देना है, तो 2,85,000 हमने अपने क्रेडिटर के कॉलम में लिख दिया। और अब जब ऐड किया तो फिर हमें क्या मिला, हमें दोनों टोटल इक्वल मिला। सो अगेन योर टेबल इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू द बैंक। 6 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, बैंक में जमा किए है। बैंक इज ऑल्सो एन एसेट इक्वली वेरी मच सिमिलर टू द कैश। ट्रेंड इज चेंजिंग, स्पेंडिंग ट्रेंड इज चेंजिंग। अभी लोग कैश के जगह पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो क्या तो कैश रखो जेब में या तो डेबिट कार्ड रखो, दोनों चीज़ें लगभग बराबर हैं। तो इसीलिए कैश हमारे पास है या फिर हमारे बैंक में कैश है, दोनों एक तरीके से बराबर की चीज़ें हैं। तो हमारे पास टोटल कैश पड़ा हुआ था 7,85,000 रुपया, जिसमें से 6 लाख रुपए निकाल के मैंने बैंक में डाल दिए। अब मेरे पास कैश कितना बचा, 1,85,000। इन्वेंट्री कितनी है, 50,000 की 50,000 बची हुई है। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का है, और बैंक में हमारे अब 6 लाख रुपए हैं। कुल 11,35,000, और हमारा लाइबिलिटी इज अनइफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन। ऑफिस का फर्नीचर खरीदा, परचेज प्लांट, जिस तरीके का ट्रांजैक्शन था सेम ट्रांजैक्शन इज हेयर ऑल्सो। और इस बार हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी की जगह फर्नीचर खरीदा है, जो कि 1 लाख रुपए का है। तो फर्नीचर हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने फर्नीचर के कॉलम में 1 लाख रुपए ग्रीन शेडेड रीजन में लिखा है। जबकि पेमेंट हमने चेक से किया है, तो चेक से अगर करेंगे तो हमारा कैश डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारे बैंक के बैलेंस में से कमी होगी। तो ये 1 लाख रुपए ग्रीन जोन में बैंक कॉलम में देखो हम लोगों ने लिखा है -1 लाख। तो हमारा 6 लाख का बैलेंस जो बैंक में था वो हमारा कितना रह गया, 5 लाख रुपए रह गया, क्योंकि 1 लाख रुपए हम लोगों ने फर्नीचर के लिए पेमेंट कर दिया। एंड अगेन आवर लाइबिलिटी साइड विल बी अनइफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज गुड्स। हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा था, हम लोगों ने प्लांट खरीदा है, ये दोनों क्या है, एसेट परचेज किया हम लोगों ने। अब हम लोग स्टॉक परचेज करने जा रहे हैं। 80,000 फॉर कैश एंड फॉर 35,000 इन ओके 80,000 का इन्वेंट्री हम लोगों ने कैश खरीदा, और 35,000 का इन्वेंट्री हम लोगों ने उधार खरीदा है। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी खरीदी है, 1,15,000 की इन्वेंट्री खरीदी है। तो जो इन्वेंट्री हमारी 50,000 की हुआ करती थी, अब उसमें 1,15,000 और जुड़ गया, तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची, 1,65,000। हम लोगों ने 80,000 रुपये कैश पे किया है, तो जो हमारा 1,85,000 का बैलेंस हुआ करता था कैश का, उसमें से 80,000 रुपये और घट गया, तो हमारे पास कैश कितना बचा, 1,05,000। प्लांट एंड मशीनरी नो अनइफेक्टेड, बैंक अनइफेक्टेड, फर्नीचर अनइफेक्टेड, लाइबिलिटी साइड अनइफेक्टेड। नो, लाइबिलिटी साइड इज नॉट अनइफेक्टेड, क्योंकि 35,000 का हम लोगों ने उधार भी तो माल खरीदा है। वी हैव परचेज्ड 35,000 ऑफ गुड्स इन क्रेडिट। तो हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो 35,000 से बढ़ जाएंगे। 2,85,000 जो हमारे क्रेडिटर्स थे, जो हम लोगों ने प्लांट मशीनरी उधार खरीदा था, अब हम लोगों ने 35,000 रुपये के गुड्स भी उधार खरीद लिया है। तो टोटल क्रेडिटर हमारे कितने हो गए, 3,20,000। अगेन द टोटल मैचेस ऑफ बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी। Goods amounting to 45,000 was sold for 60,000 on cash basis। 45,000 रुपये कीमत का
सामान, गुड्स, प्रोडक्ट हम लोगों ने 60,000 रुपये में कैश में बेच दिया। मतलब क्या है? मतलब कि हमारा 45,000 रुपये की कीमत का जो स्टॉक था, मतलब हमारे स्टॉक से कितनी कीमत कम हो गई? सिर्फ 45,000 रुपये का स्टॉक हमारा कम हुआ, जबकि इनकम कैश हमारे पास कितना आया? 60,000 रुपये आया। तो कैश हमारा 60,000 बढ़ गया, कैश के कॉलम में हम लोगों ने 60,000 ऐड कर दिया, जबकि इन्वेंट्री में से 45,000 रुपये जो बिक गया माल वो कम हो गया, तो इन्वेंट्री में से 45,000 हमने घटा दिया। और ये जो कैश और इन्वेंट्री के बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा। द प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज आवर कैपिटल। तो इस 15,000 को हम लोग अपने कैपिटल में दिखाते हैं, तो हम लोगों ने कैपिटल में ऐड कर दिया। वेरी स्लोली, gradually I will tell you that why profit is added to the capital. Keep this question in your mind, why we add profit to the capital. That is very good question. And while discussing the methods of making journal entries, I have discussed, I think I have discussed it, that profits are liability for the firm. End of the day, profits to be paid to the owners. Profit is a reward for taking risk. So you can prepare your answers also, and for preparing your answers you can take help of my video. So let's move on. Seventh transaction, goods costing 80,000 were sold for 1,25,000 on credit. 80,000 का सामान बिका, जो कि बिका है पूरे 1,25,000 में, लेकिन पूरा का पूरा उधार बिका है। तो 80,000 का सामान बिक गया, मेरे पास सामान बचा था 1,20,000 का, उसमें से मैंने 80,000 का सामान और बेच दिया। मेरे पास गुड्स कितने बचे? 40,000। और ये 1,25,000 का सामान पैसा मैंने उधार बेचा है, तो मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में। तो इस जिन लोगों से पैसा हमें फ्यूचर में मिलता है, वो लोग हमारे एसेट की तरह हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो इन डेटर्स में हमारा 1,25,000 रुपये बढ़ गया, तो हमारे डेटर्स अब हो गए 1,25,000 रुपये के। और फिर वही चीज़ है कि 80,000 और 1,25,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, जो कि हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8, चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000। जो जिसने हमें गुड्स सप्लाई किया था उसको 35,000 का चेक दिया गया है। तो किसने हमें गुड्स सप्लाई किया था? ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हम लोगों ने 35,000 रुपया उधार क्रेडिटर्स को दिखाया है। तो अब हम लोगों ने अगर पेमेंट कर दिया तो हमें उसको क्रेडिटर्स में से घटाना भी पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये की 100 रुपये, एक आदमी है, 2 लोग हैं, 50-50 रुपये उनको मुझसे लेने हैं। तो मैंने अपनी किताब में लिखा कि ये 100 रुपये के क्रेडिटर्स हैं मेरे, मैंने 50 रुपये एक को दे दिया, तो अब मेरे क्रेडिटर कितने बचे? सिर्फ 50 रुपये के बचे, क्योंकि 50 रुपये का मैंने पेमेंट कर दिया है। तो 3,20,000 के टोटल क्रेडिटर्स है, जिसमें से मैंने 35,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए? 35,000 से कम हो गए। और मैंने पेमेंट चेक से किया है, तो मेरा बैंक का जो बैलेंस था 5 लाख रुपये, वो घट के उसमें से 35,000 रुपये घट जाएंगे, और मेरे पास कितना बचेगा बैंक बैलेंस? 4,65,000। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा बैलेंस टोटल दोनों साइड का, एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी, दोनों साइड का टोटल सेम है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹75,000। जो हम लोगों ने बेचा था, जिस कस्टमर को हम लोगों ने उधार माल बेचा है, उससे 75,000 रुपये का हमें चेक मिल गया। तो अब इस बार इस ट्रांजैक्शन में फिर हमारी आवर लाइबिलिटी साइड बिकम अनअफेक्टेड। हमारे 75,000 रुपये के डेटर्स, 1,25,000 के डेटर्स थे, जिसमें 75,000 का पेमेंट हमें रिसीव हो गया, तो हम 75,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 1,25,000 के जगह पे उसमें से 75,000 माइनस किया, तो हमारे पास बचे कितने डेटर्स? 50,000। जबकि हमारे बैंक अकाउंट में हम लोगों ने चेक रिसीव किया है, तो हमारा बैंक बैलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज बाई 75,000। दैट्स वाई वी एडेड the 75,000 to bank. Now the last transaction, withdrawn by owner for personal use.
ओनर ने ड्राइंग किया, ऐसा विड्रॉल जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है उसे अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहते हैं, DRAWINGS। स्टूडेंट्स प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ड्राइंग्स। These words can make you confused if you guys will not be attentive during this video, so please be attentive। तो ओनर ने 25,000 रुपये की ड्राइंग्स की, कैश निकाला तो हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। 1,65,000 में से 25 चला गया तो हमारे पास बचे कैश 1,40,000 के। इन्वेंट्री 40 की 25 हुई है। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, बैंक 5,40,000, फर्नीचर 1 लाख और डेप्टर्स हमारे 50,000 बचे हैं। और ये जो विड्रॉल हुआ है, इस विड्रॉल की वजह से हमारा कैपिटल जो कि 9,10,000 रुपये का हुआ करता था उसमें से 25,000 रुपये कम हो गए। जिस तरीके से प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ा दिया था उसी तरीके से ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देती हैं। तो हमारा कैपिटल कितना बचा? 8,85,000 रुपया। एंड एंड ऑफ द सम वी हैव सीन दैट बोथ द टोटल्स आर अगेन इक्वल। सो गाइज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज एंड प्लीज keep sending me the pic of your problems, and if you have any doubt I welcome you guys. Feel free to disturb me with your doubts because those are the only thing which I need the most while preparing something for you guys. To keep these effort productive I need your support, and your only support is be attentive while watching the video and have some doubts so that I will get some topics on which I can prepare my video. So guys, as I always request you guys to, if you have any from your book, start practicing several questions. Confusions if you have, let me know. And we know that we are gradually moving towards the problem solving sessions, so that is going to disturb you if you guys have no clear concept. So please be prepared, be alert, and keep giving me feedback. If you guys are not getting anything out of my video, let me know. I will try to change it. I am always ready to update myself. Everyone is there. So guys, thank you all.